Hi dear student, welcome back. This is me Shehzad. Finally just I'm back after a long time and I hope this new session will be rocking in coming time. Basically little bit just I took rest and for the purpose of a new plan how just we can make you understand, how just make you speak English better and better. So hopefully मुझे लगता है कि आप लोग शायद कुछ मेरी क्लासेस मिस किए होंगे कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैंने वीडियो नहीं बनाया. अब आई होप मैं यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा एंड ओनली जस्ट आई कैन से वन थिंग, जस्ट आई नीड योर सपोर्ट एंड लव अ लॉट to boost up my new channel MS English Gym, and I would like to give my best as far as possible. So again, just it's a fresh start, restart after a long time, after big break, and I'm back. This is a bonanza for all of you, and I know just some guys are really creative to learn English. They want to speak English, and some wants to only have a daydreaming, but they don't try. I think just if you try, you can rock anytime. And I'm with you, I can help you, and I would like to make it easy how just you can speak English within a few days. And today my topic is I would like to say just how just you can practice tense at home with your friends, with your brother, with your siblings. You can say today I would like to just make you set some examples here, and I think just you will enjoy this thing. And so for this thing I would like to call is none other than is Mr. Neg. Please come to me. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है घर में. और अगर आपको टेंस पे कमांड है, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, लेकिन जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बेसिक अंग्रेजी स्टार्ट वहां से नहीं कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या हिंदी, और हिंदी की हेल्प से ही हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है. तो चलिए टेंस के प्रैक्टिस करने से पहले मैं सबसे पहले इसका इंट्रो जानेंगे, और इसका इंट्रो जानूंगा, उसके बाद फिर इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आगे टेंस में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसके क्या पहचान है और इसके क्या कीवर्ड्स है और इसे कैसे प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं. मैं सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ. ठीक है, हम स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी योर इंट्रो. Hello friends, this is me Mr. Neg Namai of class 10th from Teragaj. Now I am living at Baluganj. I am son of MD Mahfouz Alam. That's it. Okay, just first of all, just cool and calm, and no need to be just nervous. Okay, and I know it's your first class in front of camera, so it happens sometimes for the fresher. It happens in front of camera. People also become just nervous, and they feel some problem to face the camera like that. But it's natural. It's not a big issues. And hopefully just first of all I want to ask you one question, sir. What do you want to is my basic and first question after intro. I love to ask, what do you want to be in your life? Basically I want to be a doctor in my life. Okay. And I want to be a doctor because I want to help the poor peoples. Poor people. Poor peoples. Then that is why I want to be a doctor. Okay. That's my hobby. And next question is I would like to ask you, how many hours do you read every day? Usually I used to read 4 hours every day. 4 hours. Do you think just 4 hours enough for just enough to achieve your dream? No, it's not enough. But I try to read more. What is your favorite subject? My favorite subject is science. Science is your favorite subject. Okay, best of luck for your future, and I hope your future will be better and brighter if you... Okay, now come to the point. First of all, ask me some questions according to tense. जैसा कि मैंने बताया कि टेंस पे अगर आपका कमांड है, अगर आप टेंस को जल्दी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आसानी से समझते हैं और क्या करते हैं, इंस्टेंटली आंसर देते हैं, तो आसानी से फिर अंग्रेजी बोलना क्या होता है, आसान हो जाता है. 1 लाइन से 2 लाइन, 2 लाइन से 3 लाइन, फिर इजीली हो जाएगा. बेसिकली आई एम सेइंग वन थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस you can't speak English. So basically you must have to show patience, practice and patience. आपके अंदर जोश हो, जज्बा हो, जुनून हो, उमंग हो, तरंग हो कि मुझे ये इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना है. आपको स्टार्ट हमेशा जीरो से ही करना है. अगर आप ये चीज करना जानते हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आई होप आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश विद इन फ्यू मंथ्स. ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, हिंदी के माध्यम से आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्स करना है. टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा. जैसे अगर हम यूजुअली जो बोलते हैं, मैं समझता हूं, I understand.
थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे ताकि सबको सुनने में आया। मैं समझता हूँ। I understand. क्या तुम समझते हो? Do you understand? एक चीज मैं बता दूं, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो आपको कीवर्ड से स्टार्ट करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, व्हाट लगा देते हैं। व्हाट आपको तभी यूज करना है जब हिंदी वाक्य बीच में क्या हो। जैसे तुम क्या समझते हो, अब यहाँ बीच पे क्या है तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। क्या तुम समझते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ आपको क्या करना है, पहचान के हिसाब से, जैसे मैंने टेंस मैंने पढ़ाया है, जो वीडियो नहीं देखे वो आराम से वीडियो को देख ले। तातेती में डूडस लगाना है, थातेती में डिड लगाना है और गागेती में विल लगाना है। अभी तीनों सिंपल का प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंटिन्यूस की बात करेंगे। ओके, क्या तुम समझते हो, Do you understand? तुम क्या समझते हो, What do you understand? तुम क्या जानते हो, What do you know? तुम कहाँ गए थे, Where did you go? Where did you go। थातेती में क्या लगा, डिड लगा। मैं नहीं गया था, I didn't go. क्या तुम गए थे, Did you go? डिड यू गो। तुम कहाँ गए थे, Where did you go? तुम क्या करोगे, What will you do? व्हाट विल यू डू। क्या तुम बाजार जाओगे, Will you go to market? मैं बाजार नहीं जाऊंगा। I will not go to market. अब एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको विल प्लस नॉट या शेल प्लस नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आप वांट भी यूज कर सकते हैं और शैंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, I will try. मैं कोशिश करता हूं, I am trying. मैं कोशिश करता हूं, I try. आई ट्राई होगा। अब यहाँ पे आपको आई डू ट्राई करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बताऊं, जब भी सेंटेंस हाँ में है और पहचान तातेती हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखना है, यानी V1 या V5 रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है। गॉट इट। मैं गया था, I went. यहाँ पे देखिए मैं गया था पहचान है, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल लगाना है। इसमें भी रूल्स क्या है, जब भी सेंटेंस हाँ में आंसर हो, पहचान थातेती या याई हो, तो आपको डिड का यूज नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली ओनली यू हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ गया था, क्या होगा, आई वेंट। तुम समझे, You understand. यू अंडरस्टूड हो जाएगा। You understood. तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड। तुम समझे, यू अंडरस्टूड, या तुम समझे थे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यू अंडरस्टूड हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ा था, I didn't study. मैं नहीं कोशिश किया था, I didn't try. क्या तुम कोशिश किए थे, Did you try? क्या तुम जानते हो, Do you know? क्या तुम पढ़ते हो, Do you study? क्या तुम पढ़े थे, Did you क्या study? तुम पढ़ोगे, Will you study? विल यू स्टडी। तुम क्या सोचते हो, What do you think? तुम कहाँ गए थे, Where did you go? तुम कहाँ जाओगे, Where will you तुम go? कैसे आए, How you come? हाउ डिड यू कम। तुम कैसे आए, हाउ डिड यू कम। तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। तुम कैसे आते हो, हाउ डू यू कम। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको डस का यूज करना है। गॉट इट। जैसे वो नहीं समझता है, He do not understand. he does not understand, he does not, He does not he understand. के साथ क्या लगाना है, he थर्ड पर्सन है। अब जैसे क्या वो समझता है, He, do he understand? does he understand। ठीक Does है, he understand? कीवर्ड को बाहर कर देंगे। ठीक है, does he understand। क्या तुम, नो प्रॉब्लम, डोंट बी, नो नीड टू बी जस्ट नर्वस। ओके, जस्ट ट्राई, इट हैपेंस समटाइम्स। ओके, सो बेसिकली क्या वो आया, Do he come? क्या वो आया, Did he come? डिड ही कम। डिड के साथ हमेशा आपको V1 का यूज करना है, कभी भी डिड के साथ V2 या V3 का यूज ना करें। ओके, क्या वो आया, डिड ही कम। Did he come? क्या वो समझा, Did he understand? क्या वो नाश्ता किया। Did he take breakfast? यहाँ पे लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट ना बोल के इसको आपको ब्रेकफास्ट बोलना है। ठीक है, डिड ही Take breakfast. टेक ब्रेकफास्ट। क्या तुम आए थे, Did you come? क्या तुम कल आए थे, Did you came yesterday? डिड यू कम Did you come yesterday? yesterday। ओके गाइस, तो ये था तीनों सिंपल का, ठीक है, प्रैक्टिस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंटिन्यूस का प्रैक्टिस कैसे करें, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें और आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी पूछता हूं, जैसे ये सामने पे यहाँ पे नेक आंसर देता, आप भी इससे ज्यादा फास्ट आंसर दे सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा आंसर होगा, शायद वो गलत बोलता है, तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप सुने में देखो और फट से क्या करें, ट्रांसलेट करके आप अपने मन ही मन में क्या रिवाइज करें। अगर आपके पास आपके घर में कोई भी, या भाई हो, बहन हो, कोई भी हो इनफैक्ट, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, तो आप भी उसके साथ इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप आपकी अंग्रेजी दिन ब दिन बेटर से बेटर होता चला जाएगा। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा कीवर्ड लगेगा, इज, एम, आर लगेगा, और क्या कहते हैं इसमें वर्ब कौन सा लगेगा, बिफोर। जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो हमेशा कौन सा वर्ब लगाना है, बिफोर। इससे पहले मैंने पढ़ा, जैसे आपने प्रैक्टिस किया, मैं जाता हूं, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, I'm reading. आई एम रीडिंग। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, Are you reading? तुम कहाँ जा रहे हो, Where are you going? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या तुम जा रहे हो,
Are you going? क्या तुम नहीं जा रहे हो? Are you not going? Are you Not not going. going? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? जैसे वो नहीं आ रहा है, He is not coming. क्या वो आ रहा है? Is he coming? Is he coming? तुम अभी क्या कर रहे हो? What are you doing now? What are you doing Now. now? अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें क्या होगा, रहा था की पहचान होगा, कीवर्ड्स क्या होगा, was were होगा, और we for इसमें कॉमन इसमें भी है। मैं पढ़ रहा था, I was reading. मैं खेल रहा था, I was playing. क्या तुम खेल रहे थे? Was you playing? क्या तुम was you playing कैसे हुआ? Were you playing? Were you playing? कुछ लोग इसको were पढ़ते हैं, इसको were ना पढ़ के इसको were पढ़ेंगे, ठीक है, W-E-R-E were. Were you playing? ओके, तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going? Where were you? Going. तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? मैं पढ़ रहा था, I was studying. वो आ रहा था, He was coming. वो आ रही थी, She was coming. she was, इस was ना पढ़ के was पढ़ेंगे, इसको she was Coming. coming. क्या तुम खेल रहे थे? Were you playing? क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going? कल तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going yesterday? Where were you going yesterday? अब चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, शेल प्लस बी लगेगा और इसका पहचान तार होगा, तीर होंगे, इसमें भी कॉमन क्या V4 लगेगा। मैं एग्जांपल पे पूछता हूं इसको, फिर ये आंसर दे रहा है, मैं कोशिश करता रहूंगा। I shall be trying. यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि शेल लगाना है या फिर विल लगाना है, तो बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया कि शेल कहाँ यूज करना है, विल कहाँ यूज करना है। तो मैं स्पोकन की बात करूंगा, अंग्रेजी की बात करूंगा, लैंग्वेज की बात करूंगा, आपको यहाँ पे बेसिकली विल यूज करना है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करें। शेल और विल जब क्या करते हैं, आई के साथ या वी के साथ लग जाता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है अल या फिर वेल, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं, मैं कोशिश करता रहूंगा। आई विल बी ट्राइंग यूज कर सकते हैं या फिर आई विल बी ट्राइंग कर बोल सकते हैं। ओके, वो पढ़ता रहेगा, He will be trying. He will be studying. क्या वो पढ़ता रहेगा? Will he be studying? विल ही बी Studying. स्टूडिंग। मैं खेलता रहूंगा, I will be playing. आई विल बी Playing. प्लेइंग। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा आपको यूज करना है क्या, तीनों सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत कम यूज होता है। तो चलिए, आई होप ये प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा, और तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं कुछ और नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, कुछ नए बच्चे के साथ। आई होप आप भी कोशिश घर में करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।